Good morning, everyone. So, today we are going to start with a new chapter. Basically, there are two chapters, and we will start with BRS. It stands for Bank Reconciliation Statement. Now, this is very easy, but most of the time, students get confused in this chapter. So, we will learn this chapter in a very practical way. And this chapter is actually very easy and it is applicable even in the practical world. So let us discuss something about this concept of BRS. Okay, syllabus and all you will get in a sheet, I think today or very soon if you have not already received. So, in the syllabus, I have kept four chapters in which uh, one was bill of exchange. Now, BRS and depreciation is there. BRS we will be able to complete and depreciation में अगर कुछ start हो पाएगा तो we will keep. Otherwise, we will see how we are going to proceed further. Okay, so make a heading bank reconciliation statement. In short, it is called BRS. Now, let us try to understand ki why we need to prepare BRS. Okay. Now, there is one need to do BRS. अर्णव इज आस्किंग सर जीएसटी चैप्टर कब करेंगे तो अर्णव जीएसटी जो है दैट आई विल टच अपॉन सेपरेटली आफ्टर वी कवर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स ओके तो जीएसटी एंड में होगा द रीजन इज दैट इवन विदाउट जीएसटी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्कोर ऑप्टिमम मार्क्स उसमें भी गलतियां होती है सो योर फंडामेंटल शुड बी वेरी क्लियर एंड फिर जीएसटी को हम एज ए सेपरेट चैप्टर लास्ट में हम समझेंगे ओके नाउ चलिए एकदम प्रैक्टिकली बात करते हैं लेट्स से देर इज वन person whose name is let's say Arnav. So I am writing here Arnav's books. Now Arnav must be preparing the cash book. So Arnav की book में we have cash book. Now, in cash book, you know how many columns are there. Cash and bank, two columns are there. Yes. So, in the cash book, I am considering only the bank column. Okay. When I consider Arnav की cash book में bank का column, तो it is as good as bank account in Arnav's book. So Arnav will prepare the bank account and अर्णव की जो बैंक है उसके बुक में अर्णव का अकाउंट होगा सो लेट मी प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देखो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ओके वो मेंशन करना है बिकॉज अभी मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन इन ए मोस्ट प्रैक्टिकल वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड what is there in this chapter so as we know that any businessman will prepare the bank account okay and I want to ask from you कि in cash book debit side is called what and credit side is called what
So this is the cash book, bank column, and debit side is called receipts. And credit side is called what? Please mention in the chat box, or you can speak out. बोलिए, today only 22 students are there. It is actually very bad attendance. Yes, it is called payment side. Okay. Similarly, let's say अर्नव is having the account with State Bank of India. तो अर्नव ने SBI बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है. Now reverse is also true. So here I am writing on right hand side, in the books of SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बुक में भी अर्नव का अकाउंट होगा, अर्नव्स अकाउंट. So basically this is nothing but the bank account of Arnav. Okay, in the books of bank we have Arnav ka account. So bank will also record the transactions. And again here there are two sides. In passbook, basically when you open a bank account, they provide you passbook. Passbook may whatever transactions you do are mentioned. So this is nothing but the passbook of bank. So as good as it is passbook. लेकिन जो न्यू बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, they sometimes don't provide passbook. Okay, instead what they do, they email you the bank statement. So either it is called passbook or it is called the bank statement. So bank statement is nothing but record of transactions in your bank account. And there are two sides, या तो हम पैसे निकालेंगे या तो जमा करेंगे. Okay, so these sides are, debit side is called withdrawals and credit side is called deposits. And you need to actually be sure that पेमेंट साइड में जो भी होगा that will be mentioned in withdrawal side, and receipt side में जो होगा that will be mentioned in the deposit side. यानी in other words, कैश बुक का डेबिट which is receipt is equal to पासबुक का क्रेडिट which is deposits. ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि याद रखो, दिस कैश बुक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कस्टमर. कस्टमर खुद के लिए, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंट बनाता है. तो यहां पर जो बैंक अकाउंट है, ओके, इट इज द एसेट. अगर बैंक में पैसे जमा होते हैं तो एसेट विल इंक्रीज. ओके, तो ये डेबिट वाला अकाउंट है. एंड यहां पर बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाती है. इन अदर वर्ड्स, अगर हम बैंक में पैसा जमा करेंगे, ओके, तो बेसिकली वी आर क्रेडिटर फॉर द बैंक. तो इसीलिए क्रेडिट साइड पर लिखा जाना चाहिए. सो एकदम सिंपल वर्ड में कहूं, एकदम सिंपल वर्ड में, तो ये जो अकाउंट है वो एसेट का अकाउंट है. हैंस उसमें डेबिट साइड रिसिप्ट है. एंड अर्नव का जो अकाउंट है, जो बैंक ने बनाया है, बैंक ने अपने लिए अकाउंट बनाया है, तो बैंक के लिए हम क्रेडिटर है. ओके, व्हेन वी हैव बैंक बैलेंस वी आर क्रेडिटर फॉर द बैंक. तो बेसिकली दिस इज क्रेडिटर्स अकाउंट. बेसिकली इट्स ए पर्सनल अकाउंट. ओके, तो अगर हमने बैंक में पैसा जमा किया है तो बेसिकली वी आर क्रेडिटर फॉर द बैंक. सो आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. ओके, now my question to you is कि suppose I have received one check. देखिए ये इसमें क्या होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन.
देयर इज ओपनिंग बैलेंस, मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, एंड हियर ऑल्सो आई हैव ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस सेम है. नाउ व्हाट विल हैपन, one of my customer directly deposited into my bank account, ओके, और मुझे पता ही नहीं है. तो मुझे बताओ कि कौन सी बुक में ये एंट्री होगी. कस्टमर इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, लेकिन मुझे फोन भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं है. यस, सो इट विल बी मेंशन्ड इन द पासबुक. सो हियर आई एम राइटिंग, लेट्स से वो कस्टमर अनुज है. ओके, सो आई एम राइटिंग बाय अनुज अकाउंट, अनुज का नाम आ जाएगा. एंड हेयर आई एम मेंशनिंग वो क्या है, इट इज डायरेक्ट डिपॉजिट. तो देर आर फ्यू ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें एक साइड पर एंट्री है, दूसरे साइड पर मिस हो गई है. जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है. तो अनुज ने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, लेकिन जिसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री यहां पर होनी चाहिए थी, बट वो नहीं है, बिकॉज कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय अस. ओके, तो बैंक में कुछ पैसे आए हैं या गए हैं, तो समटाइम्स वी डोंट नो, एंड हेंस इन आवर बुक देयर इज नो एंट्री. तो कैन आई से नाउ क्लोजिंग बैलेंस विल बी डिफरेंट इन बोथ द बुक्स? Yes or no? Yes. Yes, sir. So hence BRS प्रिपेयर किया जाता है. Why BRS is prepared? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दोनों बुक्स में अलग अलग क्लोजिंग बैलेंस है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द क्लोजिंग बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक. दोनों में अलग अलग बैलेंसेस है, तो क्यों है, वेदर देयर इज एनी मिस्टेक और वेदर देयर एनी ओमिशन. केस बुक में कुछ मिस्टेक है या ओमिशन है, या पासबुक में कुछ मिस्टेक है या ओमिशन है. तो बीआरएस विल हेल्प अस टू reconcile or find the reason or tell us the reason why there is a difference. Can someone give me another example जिसमें एक साइड पर है बट दूसरे साइड पर एंट्री ना हो? ओके, एक और एग्जांपल. लेट्स से यहां पर मैंने एक चेक इश्यू कर दिया. ओके, ऊर्जा को. सो आई एम राइटिंग हियर बाय ऊर्जास अकाउंट. मैंने ऊर्जा को पेमेंट कर दिया. सो आई हैव इशूड द चेक ऑफ 20,000. लेकिन ऊर्जा ने ये चेक अपने पास रखा, एंड बाय मिस्टेक ऊर्जा हैज फॉरगॉटन दिस चेक इन हर ऑफिस. ऊर्जा ने अपनी बैंक में ये चेक डिपॉजिट ही नहीं किया. तो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या मेरे बैंक अकाउंट से ऊर्जा को पैसे मिलेंगे या नहीं? नहीं सर. क्यों नहीं मिलेंगे? चेक तो सर, she has forgotten the check. यस, ऊर्जा ने ये चेक तो डिपॉजिट ही नहीं किया है, बराबर. सो दिस इज अनदर सिचुएशन जहां पर एक साइड पर देखो, पेमेंट साइड पर जो है वो विड्रॉल साइड पर होना चाहिए, बट यहां पर इन दिस सिचुएशन इट्स नॉट देयर. तो हैंस क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस होगा. नाउ अनदर एग्जांपल मैं आपको यहां पर बताता हूं. इट इज अबाउट बैंक चार्जेस. कैन आई से बैंक्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज, जिसमें से एक सर्विस है एटीएम. ओके, Yes सेविंग्स sir. अकाउंट है तो एटीएम है, या फिर अगर लेट से आप करंट अकाउंट ओपन करते हो, ओके, एंड समटाइम्स यू नीड टू पे इंटरेस्ट. अगर आपने ज्यादा पैसे बोरो किए हैं तो यू नीड टू पे इंटरेस्ट. तो समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट कि बैंक ने कोई चेक बाउंसिंग चार्जेस या कोई भी, देर आर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस. सो बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए हैं, बट बैंक, लेट्स से इट इज 1,000, बट बैंक इज नॉट गोइंग टू कॉल यू कि सर हमने आपका अकाउंट डेबिट कर दिया है. बैंक इज नॉट गोइंग टू इन्फॉर्म, उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स है. तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि देर इज अ बैंक चार्ज विच इज चार्ज बाय द बैंक. तो पेमेंट साइड पर बैंक चार्जेस तो लिखा हुआ नहीं है. ओके, so I think you are able to understand the difference. Okay,
Now, another example which I can give uh, is about dividend received by the bank. What is the meaning of dividend? अगर आप कोई कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो when you invest in shares you don't get interest but you get dividend. So dividend interest जैसा है, but उसका नाम अलग है. इट इज नॉट कॉल्ड इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है कि इतने परसेंटेज के लिए इंटरेस्ट मिलेगा. बट इन केस ऑफ डिविडेंड वो फिक्स नहीं होता. अगर कंपनी को प्रॉफिट है तो डिविडेंड दे सकती है, इफ देर इज ए लॉस तो डिविडेंड नहीं मिलेगा. सो समटाइम्स वी गिव आवर बैंक अकाउंट डिटेल्स टू द कंपनी, जहां पर जिस कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है. तो वेन एवर देर इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो कंपनी डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगी डिविडेंड. Okay, so let's say I have received dividend of 5,000, but this dividend should have been recorded on which side in cash book? Receipt side. Yes, receipt. but it is not recorded due to ignorance. हमें पता नहीं होता, and many times it happens. So let's say this was the bank account for the month of January 2020. ये आपके पास है कैश बुक फॉर जनवरी 20 एंड दिस इज द पासबुक फॉर जनवरी 20. नाउ लेट अस फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस. ओके, यहाँ पर सब डिफरेंसेस ही मैंने लिखे हैं. कॉमन आइटम्स आर इग्नोर्ड. बीआरएस का मतलब है only such items will create the difference where entry is there on one part and corresponding entry is not there on the other part. So let's close this. अगर मैं इसे क्लोज करता हूं, सो मुझे बताइए हाउ मच शुड बी द क्लोजिंग बैलेंस इन कैश बुक? 80,000. This will be by balance carried down. Similarly, I will close the bank statement. बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं what is the closing balance. So can I say it will be 1,15,000? Here also it will be 1,15,000. So what will be the closing balance? 1,14,000. So here I will write to balance carried down. This is the closing balance. So can I say now there is a difference in the closing balance? Okay. So question में हमारे पास देखो प्रैक्टिकल कैश बुक है, पासबुक भी है, एंड वी नीड टू प्रिपेयर बीआरएस. सो क्वेश्चन ऐसे है, प्रिपेयर a bank reconciliation statement for the month of January 2020. Now answer एग्जाम में अगर बीआरएस प्रिपेयर करना है, सो व्हाट इज द फॉर्मेट? सो फॉर्मेट ऑफ बीआरएस देखिए इस तरह से है. यू नीड टू राइट बीआरएस फॉर द पीरियड. यहां पर पीरियड है जनवरी 2020. नाउ बीआरएस प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं. ओके, so let me show you here how BRS is prepared. You need to make basically 3 columns, 2 columns for amount. यहाँ सीरियल नंबर के लिए छोटी सी कॉलम रख सकते हो. सो बस इतना सिंपल फॉर्मेट है. एंड इसमें यू विल राइट serial number, particulars. I hope whatever I am writing you are able to write. And here I have rupees and rupees. Now BRS always starts with the closing balance. Okay, but there are two options.
इफ आई स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी अर्णव के बुक में जो बैंक अकाउंट बना है अगर वहां से स्टार्ट करूंगा तो आई विल अराइव एट द क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक। अगर पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो वी विल अराइव एट द क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक। सो देर आर टू वेज। सो राइट नाउ मैं यहां पर बी आर ए स्टार्ट करता हूं इस वे से, क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक, closing balance as per cash book. So from the question you can see closing balance as per cash book is how much? 80,000. Then I need to add few transactions. Okay. And I need to deduct or minus few transactions. And if I do this, ये add or less करने के बाद I will get closing balance as per which book? कैश बुक से स्टार्ट किया तो वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस पासबुक। एज पर पासबुक। यस, वेरी गुड। अब यहां पर बिफोर आई टीच यू कि भाई ये कैसे कर डिराइव करना है क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक, कैन यू प्लीज टेल मी के क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक क्या आना चाहिए? 1,14,000 देखो। सर ओके, 1,14,000। 1,14,000। ओके, सो चलिए वी विल सी कि वेदर ये 1,14,000 आता है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट के आपको देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ओके, टू डू दिस। देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, लेकिन एक प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं जिसमें थोड़ा सोचना होगा एंड वो इजी है। ओके, नाउ look here, you have started from closing balance as per cash book। ठीक है, मैं पहले इजी वाली मेथड बताता हूँ, साइन वाली मेथड। ओके, सो नाउ साइन वाली मेथड में आपको क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यू आर स्टार्टिंग with this point, you are starting with this point which is closing balance as per cash book। तो मेरा सवाल ये है कि ये 80,000 क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? सोचो। क्रेडिट। रॉन्ग आंसर, डेबिट। डेबिट बैलेंस। ओके, देखो क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसमें आपको धोखा नहीं खाना है। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा रिवर्स साइड पर आती है, बट एक्चुअली में वो वैसी नहीं होती। तो हियर क्लोजिंग बैलेंस लिखी गई है पेमेंट साइड पर, बट बेसिकली इट्स अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा था। ओके, सो कह रहा हूं बी केयरफुल, ये यस हमारी सर। डेबिट बैलेंस है। सो दिस वन इज द डेबिट बैलेंस। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया है, बराबर। तो नाउ, तो डेबिट साइड जो है ना कैश बुक की, वहां पर आपको एक माइनस साइन लिख देनी है जहां से आप स्टार्ट करते हो। इफ यू स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो वहां पर माइनस लिख दो एंड मेक अल्टरनेट साइंस। इसका लॉजिक क्या है मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये इजी मेथड है। जो स्टूडेंट को ज्यादा सोचना पसंद नहीं है उनके लिए बहुत इजी मेथड है। ओके, सो माइनस है तो बाजू में क्या होगा, प्लस। अल्टरनेट साइन, दो सेम साइन बाजू में नहीं आनी चाहिए। अगर ये प्लस है तो यहां पर इट शुड बी व्हाट, माइनस, और अगर ये माइनस है तो बाजू में इट शुड बी व्हाट, प्लस। प्लस। अल्टरनेट साइंस, ये मेथड में ना ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। ओके, सिर्फ आपको केयरफुल रहना है कि कहां पर आपकी मेन साइन, मास्टर साइन आपको लगानी है। तो इट डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग बैलेंस। ओके, अगर आप क्लोजिंग बैलेंस
डेबिट से स्टार्ट करते हो एज पर कैश बुक, तो कैश बुक के डेबिट साइड में माइनस लिख दो। अच्छा, आफ्टर दिस अगर बीआरएस प्रिपेयर करना है तो इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। आपको देखना है जहां पर जो अमाउंट लिखा गया है उसके ऊपर क्या साइन है। फॉर एग्जांपल ये जो 20,000 यहां पर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर क्या साइन है? प्लस साइन है। तो ये 20,000 को क्या करना पड़ेगा? प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये जो 1,000 आपको दिख रहा है, ये 1,000 के ऊपर क्या साइन है? माइनस माइनस। 1,000 तो करना पड़ेगा। माइनस करना है। और ये जो 10,000 और 5,000 जो हमने लिखा है उसके ऊपर क्या साइन है? दोनों को प्लस करना पड़ेगा। प्लस साइन है, तो दोनों को प्लस करना है। ओके, तो बीआरएस हो गया, पता चल गया कि क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। ओके, अब देखिए, चलो देखते हैं कि क्या ये मेथड सही है कि नहीं। तो देखो, प्लस करने में मेरे पास टोटल 3 अमाउंट्स है, 20,000, 10,000 एंड 5,000। सो हियर आई एम राइटिंग 20,000, 10,000 and 5,000. So total of these three will become how much? 35. 35,000. 35,000 एंड एक है ना, यहाँ पर टोटल कर दूंगा छोटा सा, 80 प्लस 35 कितना होगा? 1,15,000. 1,15,000। अब देखो, सिर्फ अमाउंट लिखने से नहीं चलेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा ये 20,000 क्या है। सो लुक, ये 20,000 क्या है? ऊर्जा ने हम ऊर्जा को हमने पेमेंट किया था। सो आई विल राइट लाइक चेक इश्यूड टू ऊर्जा, है ना, हमने ऊर्जा को चेक दिया था, बट नॉट क्लियर्ड। क्लियर्ड का मतलब है कि हमारे बैंक से पैसे गए नहीं है, तो चेक इज नॉट क्लियर्ड। अगर चेक क्लियर हो जाएगा, वी नो द कंसेप्ट ऑफ क्लियरिंग ऑफ चेक। कैन somebody टेल मी कि if you deposit the check today, then how much time it will take to get it cleared or get the payment? How many days it takes? 3 business days. Very good. Lavanya's answer is correct. देखो, चेक की सिस्टम इतनी फास्ट अभी तक नहीं हुई है, बट जनरली कुछ जगह पर ऐसा है कि अगर सेम बैंक में दोनों ही अकाउंट है, रिसीवर पेयर दोनों एक ही बैंक के एक ही ब्रांच में है, तो इट इज पॉसिबल दैट यू गेट मनी इन 1 डे। बट जनरली 3 बिजनेस डेज लगते हैं। तो चेक इश्यूड टू ऊर्जा बट नॉट क्लियर। अच्छा, ये 10,000 क्या था? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अनुज। सो आई विल राइट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अनुज। और अंदर की बात बताऊं, जो लिखना है ना वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको सिर्फ प्लस माइनस, ये मैथ्स जैसा क्वेश्चन है। तो कुछ स्टूडेंट को ये चैप्टर इजी लगता है और कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, बट इट्स वेरी इजी। ओके, एंड ये 5,000 क्या है? डिविडेंड। सो आई विल राइट डिविडेंड रिसीव्ड। दैट्स इट। लिखने में आप कुछ भी लिखोगे, मीन्स वर्ड्स अलग हो सकते हैं, बट इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। अब व्हाट अबाउट दिस बैंक चार्जेस? बैंक चार्जेस वी नो दैट ये तो माइनस करने हैं। सो लेस में मैं लिखूंगा बैंक चार्जेस, और बैंक चार्जेस 1,000 एक ही अमाउंट है, तो डायरेक्टली मैं यहां पर ही लिखता हूं -1,000। सो here we go. What is the closing balance? 1,14,000. So can I say my BR is correct? Yes, my BRS is correct. So I taught you this as per method number 1, which is called sign method. ये method number 1 में even the weak student can score full marks. Okay, but again I repeat, what you are supposed to know in this method? In this method, you need to know the closing balance. Agar you are starting as per the closing balance, when I say balance, it means that ये asset है आपके लिए। बैलेंस का ऑपोजिट होता है ओवरड्राफ्ट।
So let me share with you about this method. I think you have completed this BRS. I'm writing here this important table you need to prepare. I am writing here starting point. This is very important and this method we used to follow in Mumbai. लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स टीच बाय डिफरेंट मेथड. हालांकि देखो, दैट मेथड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टीच, दैट इज लॉजिकल मेथड. ये थोड़ी शॉर्टकट मेथड है. ओके, सो वी यूज टू फॉलो दिस स्टार्टिंग पॉइंट and there can be 4 situations like this. Please prepare the table like this and this is going to be very important. Okay, so we know that we have cash book and we have passbook. Okay, cash book बिजनेसमैन प्रिपेयर करता है, पासबुक बैंक प्रिपेयर करती है. Here we have receipt side, then I have payment side, and passbook में I have withdrawal side and deposit side. Now 4 situation हो सकती है. You can have closing. स्टार्टिंग पॉइंट में वी राइट क्लोजिंग बैलेंस. हमेशा याद रखो ओपनिंग बैलेंस से नहीं स्टार्ट करना है. ऑलवेज स्टार्ट विथ द क्लोजिंग बैलेंस. सो क्लोजिंग में आइदर वी कैन हैव बैलेंस एज पर कैश बुक, जो मैंने ऊपर बताया. सीबी मीन्स कैश बुक. अच्छा, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बैलेंस? बैलेंस का ऑपोजिट क्या हो सकता है? ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. सो याद रखो, व्हेन आई से बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब वो डेबिट बैलेंस है. इट इज योर एसेट, इसलिए वो डेबिट है. व्हेन आई से ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक आपकी बुक है. सो ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी. आपने ज्यादा पैसे बैंक से विड्रॉ कर लिए हैं. इफ यू हैव करंट अकाउंट देन दे अलाउ यू, ज्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हो, दे चार्ज इंटरेस्ट. So liabilities have credit balance, you already know this. Okay, so when you start with debit balance as per cash book, तो कैश बुक के डेबिट साइड पर आपको एक माइनस साइन करनी है. when you start as per कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट इज योर लायबिलिटी जो क्रेडिट बैलेंस होती है, तो माइनस साइन कहां पे पुट करेंगे? क्रेडिट साइड. ओके, एंड प्लीज नोट, अगर ये माइनस है तो बाजू में प्लस होगा, अगर ये प्लस है तो बाजू में माइनस होगा. तो हियर इट विल बी प्लस. डोंट गेट कंफ्यूज, इट्स वेरी इजी. अगर ये माइनस है तो इसके आजू बाजू में क्या होगा? प्लस साइन. सो हियर इट विल बी माइनस साइन. बस ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. एज एंड व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन इट विल हेल्प यू. व्हाट कुड बी द अदर सिचुएशन? हर बार कैश बुक से स्टार्ट करें ऐसा जरूरी है? नो. No, सो वी balance कैन as per स्टार्ट. passbook. हाँ, बैलेंस एज पर पासबुक. और 4 सिचुएशन क्या हो सकती है, सोचो. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. यस, परफेक्ट. देखो ये क्या है, 4 टाइप के सेम्स आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने इस मेथड को समझ लिया ना, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कहां से भी स्टार्ट करो. इट्स वेरी इजी. लेकिन जिसके माइंड में वो वाली मेथड फिट हो गई है, वो पहले ध्यान दो. लर्न बोथ द थिंग्स. ओके, फिर कोई भी अप्लाई कर सकते हो. सो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. नाउ अब सोचिए, अगर पासबुक में बैलेंस है
बैलेंस का मतलब ये है कि आपकी डिपॉजिट साइड, जो क्रेडिट वाली साइड है ना, वो ज्यादा थी. तो बेसिकली दिस वन इज विच बैलेंस? इट इज योर क्रेडिट बैलेंस. याद रखो, पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट अगर ज्यादा है, सो इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस. अच्छा, पासबुक में ओवरड्राफ्ट कब होगा? जब कौन सी साइड ज्यादा होगी? हेलो, देखो पासबुक में डिपॉजिट साइड ज्यादा थी, तो वी गॉट बैलेंस. तो व्हेन वी विल गेट ओवरड्राफ्ट? व्हेन withdrawal side will be more. Perfect example. So यहां पर याद रखना है कि पासबुक में अगर ओवरड्राफ्ट है तो बेसिकली इट्स डेबिट बैलेंस. क्यों डेबिट? क्योंकि विड्रोवल ज्यादा किया है. सो चलिए, अब माइनस साइन थर्ड सिचुएशन में अगर पासबुक में बैलेंस है, सो पासबुक में डिपॉजिट साइड ज्यादा थी, सो वहां पर माइनस साइन होगी. एंड अगर ओवरड्राफ्ट पासबुक में है, इसका मतलब विड्रोवल साइड ज्यादा है. एंड अल्टरनेट साइन पुट करनी है. ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस. इट्स वेरी इजी. माइनस है तो आजू बाजू में प्लस. और हमेशा याद रखो, मैंने माइनस साइन जो स्टार्टिंग में लिखी है उसको बॉक्स में रखा है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें गलती नहीं कर सकते, अदरवाइज पूरा सम रॉन्ग हो सकता है. बट इट्स वेरी लॉजिकल. चलिए, सो आई होप यू मस्ट हैव रिकॉर्डेड दिस टेबल एज वेल. इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द प्रॉब्लम. और एक दूसरी मेथड भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं. सेकंड मेथड इज कॉल्ड लॉजिकल मेथड, जहां पर आपको सोचना है. अब देखो, लॉजिकल मेथड में सोचना कैसे है. सपोज ये क्वेश्चन को, इफ यू स्टार्ट विथ क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक की जगह पर, सॉरी कैश बुक की जगह पर पासबुक से स्टार्ट करोगे, तो कैन आई से ये जो ऐड हुआ है वो लेस होगा, लेस हुआ है वो ऐड होगा. यस. देखो, इफ आई स्टार्ट विथ, सर एक बार वापस बोलना. हाँ, अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करता, सोचो जरा. अब ये क्वेश्चन में जो साइन मैंने की है, बराबर सम तो सॉल्व हो गया. अगर मैं स्टार्ट करता यहां से, क्लोजिंग बैलेंस एज पर पासबुक, इफ आई स्टार्ट विथ दिस पॉइंट, तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि माइनस साइन कहां पर मैं लिखता? ये कौन सी बैलेंस है पासबुक की? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। परफेक्ट. ये पासबुक की क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस है. बैलेंस. अगर ये पासबुक की क्रेडिट बैलेंस है और अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, देखो आपके लिए होमवर्क है, आप सबको ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है. बट फर्क क्या होगा? यू विल स्टार्ट एज पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक. तो क्या होगा? मैं माइनस साइन यहां पर लिखूंगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक ज्यादा है. अगर ये माइनस साइन है, तो आप देख सकते हो पूरी साइन रिवर्स हो जाएगी. यानी मैं हिंट देता हूं, ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें फर्क क्या होगा. अभी मैं, देखिए, हार्डली 1 मिनट इज लेफ्ट. तो ये कैश बुक पासबुक बन जाएगा, और ये जो ऐड है वो लेस बन जाएगा, लेस है वो ऐड बन जाएगा, और ये पासबुक कैश बुक बन जाएगा. ओके. सो आई फील यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. चलिए, टाइम नहीं है, कल मिलते हैं. रिवाइज दिस सेशन प्रॉपरली. अगर आप फर्स्ट टाइम बीआरएस सीख रहे हो तो आई विल शेयर विथ यूट्यूब.